So what do you mean by photosynthesis? प्रयागराज की लिटरेसी रेट क्या है? You love watching cartoons? May I come in, sir? Please come. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please sit down. Thank you, sir. Introduce yourself without taking your name and place of residence. Start with academic qualification. Sir, I have done my schooling from St. Mary's Convent Inter College, Prayagraj, and after that, I've done my graduation from University of Allahabad, and I've been preparing for civil services after my graduation. And so, my hobbies include watching cartoons. Oh, you have not joined PG, Sorry. MSc or MSc? No, sir. Why? Sir, since the very beginning, I was clear that I had to go for civil services. I had no inclination towards higher studies. Oh, very good. So what do you mean by photosynthesis? So it is a natural process through which the plants manufacture food. So light energy is converted into chemical energy by this process. What are the factors required for this? So light, proper temperature is required, humidity, and carbon dioxide is required. Humidity also required? No, sir, humidity is not required. I Then? said that by mistake. Sorry. Just repeat again. So proper temperature, water, and carbon dioxide. Temperature is also required. So temperature, in the sense like light is required for the Then yes, say light. sunlight or any light, Sir, any light. any light. Yes. That must be visible or not? Sir, it may be invisible also. Invisible also. Like sir, infrared rays. No. The light must be visible for photosynthesis, right? Okay. Suppose you are seeing that pot, Yes, sir. photosynthesis going on or not? Yes, sir. Going. Okay. हिंदी भी जानती हैं आप? Yes, sir. जी यू आर बिल्कुल. कंफर्टेबल? बिल्कुल सर. अदरवाइज आप काम कैसे करेंगे? नहीं सर, मैं इक्वली कंफर्टेबल हूँ. ओह आई सी, वेरी गुड. अच्छा ये बताएं, सड़क के किनारे जो प्लांट्स हैं बड़े हरे भरे रहते हैं, ठीक है, जबकि पोल्यूशन बहुत है, डस्ट बहुत है, राइट? व्हाट इज रीजन? सर उनको सर पहली बात तो जो सड़क के किनारे हम प्लांट्स लगाते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लें, बहुत सेंसिटिव प्लांट्स नहीं होते हैं. एंड मोर ओवर सर उनको लाइट का एक नियमित सोर्स प्राप्त होता रहता है, प्लस सर उनको वाटर की भी अवेलेबिलिटी रहती है थ्रू नेचुरल सोर्सेस. तो सर ये रीज़न है कि वो हरे भरे रहते हैं. नहीं, रोड साइड के हार्डी प्लांट्स नहीं है. मैंगो ट्रीज खूब देखा होगा आपने, दे आर आल्सो हेल्दी. यस सर. देन व्हाट यू थिंक, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट? Sir, I think the mango trees are like mostly low maintenance plants which do not require too much of maintenance. मैं जहाँ बोल रहा हूँ आप जा नहीं रहे हैं. देखो ऐसा ना, रात में भी दिन में भी फोटोसिंथेसिस होती रहती है. बात समझ रहे हो? तो दिन में सनलाइट है और रात में गाड़ियाँ चलती हैं तो उनकी लाइट पड़ती रहती है, तो फोटोसिंथेसिस उनकी जो है राउंड द क्लॉक चलती रहती है. दैट्स वाई दैट दीज प्लांट्स आर हेल्दी, राइट? Okay, sir. Thank you. Okay. What do you mean by greenhouse effect? So it's a process through which the global average temperature increases. So the reason behind is that the incoming radiations are not allowed to escape, and the energy is trapped within the atmosphere, and so it results in the increase in the global average temperature of the earth, and which later on leads to global warming. What are the gases responsible for this? So like methane, carbon dioxide, chlorofluorocarbons, SF6, and water vapor is also one of the greenhouse gases. Right. Have you heard recently antibacterial microbial resistance? Yes, sir. What do you mean by this? So it's basically a
resistance of a body that which is developed due to the overuse of antibacterial like antibiotics that we take. So the body becomes used to it and stops responding to the antibacterial like the properties of the antibiotics. वुमेन एम्पावरमेंट में गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स बनाए हैं, कुछ आप बताएंगे? जी सर इस पे राज्य स्तर पे और नेशनल स्तर पे काफ़ी काम हुआ है सर। जैसे हमारे पास राज्य स्तर पे मिशन शक्ति है, पिंक बूथ है, विमेन हेल्प डेस्क हैं, विमेन हेल्पलाइन नंबर्स हैं। और सर अभी बजट में भी जैसे हम जानते हैं कि महिलाओं को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया है, वर्किंग विमेन हॉस्टल्स हैं। एंड सर नेशनल लेवल पे हमारे पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं हैं। और सर विभिन्न राज्यों में भी लाडली बहना योजना, और सर यूपी में भी कन्या सुमंगला योजना। सर ये सारी स्कीम्स हैं। चीज़ें हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप और क्या सुझाव देना चाहेंगी जिससे एम्पावरमेंट और बढ़ जाए या अच्छा हो जाए, तो आप क्या सुझाव देंगे? सर मुझे लगता है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन महिलाओं का इंक्रीज़ होना चाहिए। जो एक एंटरप्रेन्योरशिप है, ये महिलाओं में इसका थोड़ा और प्रचार प्रसार होना चाहिए। उनका हमारी अर्थव्यवस्था में भागीदारी और बढ़ाई जाए, बिकॉज दे आर उनके अंदर दे हैव ह्यूज कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। सो आई थिंक मैं इस तरफ चाहूँगी कि मैं कदम लूँ। अच्छे सजेशंस हैं आपके। ये पॉलिटिक्स में भी क्या पोजीशन है आप लोगों की, महिलाओं की? यस सर। राजनीति में क्या उनकी भागीदारी जो है पर्याप्त है? सर नहीं, अभी एट प्रेजेंट तो नहीं है। उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम है सर। जैसे कि हम जानते हैं हमारे लोकसभा में ओनली 15% ऑफ द MPs आर विमेन कैंडिडेट्स। सो अभी तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है महिलाओं का। तो सर इसे बढ़ाने की ज़रूरत है सर। इसके लिए जैसे हमारे पास अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये एक वेलकमिंग स्टेप है सर। इसके अलावा जैसे हमारे पास लोकल बॉडीज़ में 33% रिजर्वेशन का प्रावधान है, ये भी एक वेलकमिंग अप्रोच है सर। कुछ स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन का भी है प्रावधान। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है। और जुडिशरी में क्या पोजीशन है? सर जुडिशरी में भी सर अभी तक हमारे इतिहास में सिर्फ एक वुमेन जज वी हैव हैड। सो आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दैट सेक्टर। रिक्वायर्ड देयर आल्सो। यस। ओह आई सी। ठीक है, ओके। बजट के बारे में जानती हैं आप? बजट के बारे में बजट, यस सर। क्या होता है? सर इट्स बेसिकली विवरण होता है ये हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर का विस्तृत विवरण, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमने कितना हम खर्चा करेंगे। इनकम का नहीं सर, बेसिकली एक्सपेंडिचर का विवरण होता है। अभी जो बजट आया है उसकी खासियत क्या है? सर पढ़ा है कि नहीं बजट के बारे में? जी सर, जी सर। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताइए। सर एक तो कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है, और वो तो हमेशा रहेगा जो नया बजट आएगा। जी चलिए सर। एंड सर यूपी के लिए भी काफ़ी उसमें स्कीम्स हैं, और हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए भी उसमें प्रावधान है। बजट एलोकेशन किया गया है डिफरेंट सेक्टर में। लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर का उसमें प्रावधान है। एंड 12.9% की ग्रोथ है, जो कि एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ रही है लास्ट ईयर से। SDG के बारे में जानती हैं आप? यस सर, उसमें भी हम 18th रैंक पे आ गए हैं 29th से। सो दैट इज 5 SDG में क्या है? सर जेंडर इक्वालिटी। और 6 में? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ओके। कल्चरल विशेषताएं आप प्रयागराज की बताइए जरा। सर सबसे बड़ा तो सर यहाँ पे एक कुंभ का आयोजन होता है, ये बहुत बड़ा इसकी कल्चरल विशेषताएं हैं सर। प्लस बहुत लोकल लेवल पे त्यौहार तीज होते हैं यहाँ पे सर। और हस्तकला की बात करें तो सर यहाँ का मूंज उत्पाद जो है वो काफ़ी विख्यात है। तो सर ये कल्चरली रिच रीजन है। प्रयागराज का अगर आपको SDM बना दिया जाए तो जो अर्ध कुंभ आने वाला है उसके डेवलपमेंट के लिए, विशेषकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे?
सर मैं ये इंश्योर करूँगी कि जो भी लोकल आर्टिसंस हैं उनको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे कि सर हमने लास्ट टाइम देखा था कुंभ के दौरान, सर जो भी हमारे एक बोट्समैन थे सर जिनका काफ़ी वो फेमस हुए थे, उनके पास 130 बोट्स थी एंड ही अर्नड अराउंड सम 15 crores और समथिंग। सो सर मैं ऐसे इंश्योर करूँगी कि ऐसे जिनका लघु उद्योग है या फिर जो लोकल आर्टिसंस हैं उनका इसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी हो, कंट्रीब्यूशन भी हो, प्लस उनका वेलबींग भी इंश्योर कर सकें हम। प्रयागराज की लिटरेसी रेट क्या है? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। बाउंड्री, प्रयागराज के आसपास की बाउंड्री बताइए। सर फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एंड संत रविदास नगर विच वी नोन एज भदोही एंड मिर्ज़ापुर। सर आकृति और स्टूडेंट ऑफ एसएमसी यस सर। 2014-16 यस सर। प्रिंसिपल कौन था तब? सिस्टर मैरियट। सिस्टर मैरियट। और ग्रेजुएशन में आपने बीएससी किया था? यस सर। व्हाट सब्जेक्ट्स? सो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। वेरी गुड। आइडियल पर्सन इज विराट कोहली। यस सर। कैन आई आस्क यू व्हाई? So because I really like his dedication for his work. So he said one thing which I like always admire him for. So he said, if you have to do something, you shouldn't wait for motivation. If something has to be done, it has to be done. So I really admire him, and he has like undergone through a huge physical transformation just because of his dedication and perseverance for his sport. Very good. You love watching cartoons? Yes sir. Which ones? So Tom and Jerry. टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी किस कंपनी का कार्टून है? Company. ओरिजिनली So it's a US based cartoon. Uh-huh. I'm not aware of the company as such. मेट्रो गोल्डविन मायर। Okay. एमजीएम बोलते हैं, एमजीएम कार्टून्स, टॉम एंड जेरी। Yes sir. हाँ, नहीं अच्छा है, वेरी गुड। एंड you profess to be a workaholic, Yes sir. but you are not working anywhere. So workaholic in the sense like whatever task I'm entrusted with, for example if I have to study, then I tend to overdo it sometimes, and which leads me to compromise with my health. So in that way I consider myself a workaholic. No, that does not make you a workaholic. The same is with me, but I don't call myself a workaholic. Workaholic is that person who cares only about his work and nothing else. Okay, so don't call yourself a workaholic. Okay, it's wrong to say grammatically. Okay sir. ये चीज़ें जो हैं they create problems sometimes. ठीक है, वेरी गुड। बेटर प्लानर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव सब कुछ तो हो तुम। हाँ, वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। आपके अनुसार आपका इंटरव्यू कैसा रहा? सर ठीक था। ठीक ठाक। कितने मार्क्स, अगर आप होते बोर्ड में कितने मार्क्स देते आप? सर अराउंड 7 or 7.5. ओह, आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर यू फॉर सिलेक्शन। No idea, depends on how I've done mains. मेंस, यस। फर्स्ट मेंस है आपका? Yes sir. देखो बेटा, ऐसा ना, आप में कॉन्फिडेंस है, ठीक है, लैंग्वेज क्लियर है, और आप अपनी बात लॉजिकल कह भी ले रहे हैं, लुक वाइज बिल्कुल ठीक है, ड्रेस सेंस आपका ठीक है, बैठने का गेस्चर ठीक है, हम्बल हैं आप, ठीक है, इरिटेट नहीं हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ये सब चीज़ें हैं। अब आपने वीकनेस नहीं लिखा है, वीकनेस है, अच्छा वर्कहोलिक है। अच्छा एक चीज़ जान लो, हिस्ट्री तैयार है आपकी? हिस्ट्री इतिहास Okay. तैयार है ना कि नहीं? प्रयागराज के इतिहास जैसे प्रयागराज का इतिहास। ओके सर, मतलब हाँ थोड़ा और वर्क करने की ज़रूरत हाँ, है। जैसे तो जनरल हिस्ट्री भी आप तैयार कर लीजिएगा। हाँ, वर्ड हिस्ट्री से संबंधित कुछ पॉइंट्स पूछे जा सकते साइंस हैं। वालों की एक वीकनेस होती है, हाँ, उनको डाटा नहीं याद होते सर। Especially the नहीं। Great Wars, the First World War, the Treaty of Versailles, Locarno Pact, हाँ, Second World War,
Okay, because they were the changers, like Renaissance Reformation and the Industrial Revolution, the changers of history. Yes. उसी तरह ये तो दोनों ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, तो यू मस्ट बी वेरी वेल वर्स्ड विद दीज थिंग्स, क्योंकि आजकल जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है वो इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ऑल दीज हैपनिंग्स. ओके, द बेसिक इक्वेशन स्टार्टेड वे बैक. ओके, और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, concepts of economics, and something more about the Indian polity, because everyone claims to be an expert on Indian polity, so they fire very common questions at you. और सर मेरा एक डाउट है सर, मैंने ग्रेजुएशन 2021 में मेरा हुआ, उसके बाद सर मैंने लॉ किया है, Oh, बट सर मैंने मेंशन नहीं किया why you है. have not quoted here? यस सर, एक्चुअली द रीज़न इज़ कि सर जब मेरा लॉ ख़त्म हुआ उसके पहले ही सर मैंने आपका फॉर्म फिलअप कर दिया था. 2024 जून में फॉर्म मेरा लॉ फिनिश हुआ और उसके पहले यहाँ का फॉर्म आ गया था, तो सर मैंने मेंशन कहीं नहीं किया है. तो सर अब मैं इसलिए नहीं मेंशन कर रही हूँ कि सर फिर वो एडिशनल और भी क्वेश्चंस आएंगे, BNS BSA. किशन तो लॉ आएगा कौन कि- सा आपका 3 ईयर कि 5 ईयर? सर 3 ईयर लॉ. 3 ईयर. ओ हो, मैं तो खोज रहा था कोई ला का मिल जाए. कोई बात नहीं डालिएगा, रहने दीजिएगा. तो ठीक है और सर, पहले अगर हुआ आपसे तो रहे एक तो पोस्ट अच्छा. आपकी स्पेशल मिल जाती है. सर सब मैंने विस्तार। KGS पटना में इंटरव्यू दिया था, लाइक सर मैं BPSC का भी इंटरव्यू दे रही हूँ सर. वहाँ पे मुझे सर ने बोला कि ये आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, आप मेंशन करिए इन्हें. बट सर जिस साल मेरा फिनिश हुआ सर उसी साल नए लॉज आ गए और सर उनमें अलग सेक्शंस और सब चेंज कुछ. हो गया वो. हाँ वही मतलब सर. हाँ। तो मैं थोड़ा डायलेमा में हूँ कि क्या करना अब चाहिए. छोड़ो, देखो ऐसा है, अगर आपने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, जस्ट टू फॉरगेट, आई एम प्रिपेयरिंग. हाँ सर, बट वो फिर वो गैप उनको थोड़ा सा स्ट्राइक करता है. गैप 21 में किया है आपने, और इस समय प्रिपरेशन बोल दीजिएगा, क्या करना है गैप के दौरान. 3-4 साल तो हुआ है. सर हाँ, और प्लस ये लाइक ये एग्जाम ही 2024 का है, तो लाइक एक सर 18 मंथ्स का कोचिंग था एंड देन हाँ ऐसा हो जाएगा.